Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope all you will be fine and enjoying your online lectures. Today, this is our fourth lecture of this week and chapter number 10. Today, we will study theorem 4a on page 195 of your book. You must keep your book in front of you when you are listening these lectures. So the statement of the theorem is if two circle touches externally, then the distance between their centers is equal to the sum of their radii. Means when two circles touches externally, then the distance between their centers will be equal to the sum of their radii. So look at the statement. This is the statement of theorem 4a. Here it states that if two circles touch externally, then the distance between their centers is equal to the sum of their radii. So look at this statement. Before the comma there is if two circle touch externally, means we will have two circles, both will touch externally. यानी हमारे पास दो सर्कल्स होंगे जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, ये हमें गिवन होगा. Then the remaining part of the statement is after comma. Then the distance between their centers is equal to the sum of their radii. Means we have to prove this, that the distance between the centers of the two circles will be equal to the sum of their radii. So one circle may be larger and the other one may be smaller. So the larger circle will have larger radial segment and the smaller circle will have smaller radial segment. So we have to prove that the distance between the large circle, the center of the large circle and the center of the small circle will be equal to the sum of the large radii plus the sum of the smaller radii. यानी हमारे पास दो सर्कल्स होंगे, एक को हम बड़ा सर्कल लेते हैं, दूसरे को स्मॉलर सर्कल लेते हैं. जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियल या रेडियस जो है रेडियल सेगमेंट या रेडियस ग्रेटर होगा, जबकि स्मॉलर सर्कल का रेडियस या रेडियल सेगमेंट स्मॉलर होगा. तो दोनों सर्कल्स के सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू the sum of their radii, means larger radius plus smaller radius, इसकी इक्वल होगा. ये हमने प्रूव करना होगा. तो as usual we will have to draw a figure first, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर फिगर नहीं होगा तो सर्कल के या जो थ्योरम के मार्क्स हैं वो कोई क्रेडिट आपको इसका नहीं मिलेगा. सो लिहाजा सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ करनी होगी. तो फिगर विल बी लाइक दिस. इस साइड को देखें, ये हमारे पास फिगर होगा. एक लार्ज सर्कल है जिसका सेंटर D है, एक स्मॉलर सर्कल है जिसका सेंटर F है. DF इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान में डिस्टेंस है, जबकि DC लार्जर सर्कल का रेडियस है और CF स्मॉलर सर्कल का रेडियस है. सो हमने ये प्रूव करना होगा कि DF डिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू DC प्लस CF. ये हमने इसमें प्रूव करना है. सो इस पर्पस के लिए सबसे पहले हमें गिवन लिखना होगा. तो गिवन देखें, two circles with center D and F respectively touches each other externally at point C.
अगर आप फिगर को देखें, मैंने आपको कहा कि किताब आपके सामने होना चाहिए, तो किताब में अगर आप इसका फिगर देखें या पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया, अगर उस स्लाइड को देख लें तो इसमें क्या होगा कि दो सर्कल्स है, एक का सेंटर डी है, दूसरे का एफ है, एक दूसरे को वो दोनों सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, so that CD and CF are respectively the radii of the two circle। मैंने पहले आपको फिगर में बता दिया कि DC जो है वो लार्जर सर्कल का रेडियल सेगमेंट है और CF जो है वो स्मॉलर सर्कल का रेडियल सेगमेंट है। सो CD and CF are respectively the radii of two circles। रेस्पेक्टिवली का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि CD जो है वो उस सर्कल का रेडियल सेगमेंट होगा जिसका सेंटर D पॉइंट पे है, और CF उस सर्कल का रेडियल सेगमेंट होगा जिसका सेंटर F पॉइंट पे है। तो ये हमारे पास दो सर्कल्स है जिनके रेडियाई इस तरह है। अब हमने प्रूफ क्या करना है। पॉइंट C lies on the join of center D and F and measurement of DF is equal to measurement of DC plus measurement of CF। ये हमने प्रूफ करना है कि C पॉइंट जो है वो क्या है, वो DF लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है और या इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है। तो क्या होगा, हमने प्रूफ ये करना होगा कि DF जो कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है, दैट विल बी इक्वल टू DC प्लस CF, यानी रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल प्लस रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये हमने प्रूफ करना है। दैट इज, इसी इक्वेशन को अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स D and F इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्टेंसेस DC and DF। ठीक है, यानी DF के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगा, डिस्टेंसेस DC और डिस्टेंस CF के दरमियान जो इक्वल है वो DC और CF के सम की इक्वल होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसमें अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को यूज करने के लिए हम कुछ ना कुछ इसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कोई चीज फिगर में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो यहाँ भी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगी, देखें कंस्ट्रक्शन ये है कि ड्रॉ ACB, ड्रॉ ACB, ACB को ड्रॉ कर लें, ड्रॉ ACB। ACB क्या है, एक लाइन है और ये क्या होगा, एज अ कॉमन टेंजेंट टू पेयर ऑफ द सर्कल्स एट पॉइंट C। यानी ड्रॉ ACB as a common tangent to the pair of a circle at C। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि draw line AB as common tangent to the pair of circles at point C। यानी AB लाइन हमारे पास क्या है, वो टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट का क्या मतलब है कि बोथ द सर्कल हैव अ कॉमन टेंजेंट AB, यानी AB जो है वो C पॉइंट पर लार्जर सर्कल को भी टेंजेंट है और C पॉइंट पे स्मॉलर सर्कल को भी ये टेंजेंट है, क्योंकि दोनों सर्कल्स जो है वो C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने पहले गिवन में लिखा था कि बोथ द सर्कल टचेस एक्सटर्नली एट पॉइंट C। C पॉइंट पे टच कर रहे एक दूसरे को, तो इट मींस कि C पॉइंट जो है वो सर्कल, दोनों सर्कल का कॉमन पॉइंट है और इसी कॉमन पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, C पॉइंट से, तो वो दोनों पॉइंट्स का कॉमन पॉइंट है। लिहाजा AB लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन जो है वो क्या होगा, वो दोनों सर्कल को कॉमन टेंजेंट होगा। सो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लिया कि ड्रॉ ACB। अगर आप ACB नहीं लिखते, सिंपल आप AB लिख ले और ऊपर ये एरोज डबल एरो वाला लाइन लगा ले, तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइन AB,
तो लाइन ए बी क्या है, वो एज अ कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ सर्कल एट सी। दोनों सर्कल चूंकि सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसलिए हम कॉमन टेंजेंट इसको कह रहे हैं कि दोनों जो लाइन है वो सी पॉइंट से पास हो रहा है, तो लिहाजा दोनों सर्कल्स को वो टच कर रहे हैं एट पॉइंट सी, देयरफॉर दिस इज द कॉमन टेंजेंट। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम इज प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, जैसे यहां पे स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। नाउ अगर आप अपने फिगर को देखें तो फिगर में हमारे पास दोनों सर्कल्स सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, टच कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को एट सी पॉइंट टच कर रहे हैं, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वो दो पॉइंट्स पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये दोनों सर्कल जो है एट पॉइंट सी टच कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन किस तरह टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। मतलब ये है कि दोनों सर्कल बाहर से टच कर रहे हैं। Whereas CD is radial segment and AC is common tangent, जबकि ACB is common tangent and CD is radial segment of the larger circle। जो larger circle है उसका रेडियल सेगमेंट CD और उसका कॉमन टेंजेंट ACB या AB कॉमन टेंजेंट है एट पॉइंट C। ये इसका कॉमन टेंजेंट है। तो अब इसका क्या फायदा होगा कि अगर ये कॉमन, इस मतलब हमारे इस बात करने का क्या हमारा मकसद है कि CD इसका रेडियल सेगमेंट है और ACB इसका कॉमन टेंजेंट है। इस स्टेटमेंट से हमारा मकसद क्या है, इससे मकसद हमारा यह है कि हमने पिछला थ्योरम में प्रूफ किया था, एक जो इस चैप्टर का दूसरा थ्योरम था, उसमें हमने प्रूफ किया था कि अगर टेंजेंट लाइन है और रेडियल सेगमेंट है तो वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि बोथ द सर्कल टचेस एक्सटर्नली एट पॉइंट C वेयर CD इज रेडियल सेगमेंट एंड ACB इज कॉमन टेंजेंट। सो देयरफॉर measurement of ACD is equal to 90 डिग्री। क्या वो मतलब होगा कि जो ACD एंगल है ये 90 डिग्री के इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज AB टेंजेंट है और CD इसका रेडियल सेगमेंट है। तो पिछले थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो लिहाजा रीजन में हम वो बात लिख सकते हैं कि रेडियल सेगमेंट CD इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ACB लाइन, या सिंपल आप AB लिख सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि आप सिंपल AB लाइन लिख ले या ACB लाइन लिख ले, बोथ आर द सेम थिंग। तो रीजन में हम ये लिखेंगे कि रेडियल सेगमेंट CD एंड द टेंजेंट लाइन ACB आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने थ्योरम प्रूफ किया, मतलब पहला पार्ट हमने ये लिख लिया कि लार्जर सर्कल के लिए हमने ये लिख लिया कि दोनों सर्कल चूंकि C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, CD लार्जर सर्कल का रेडियल सेगमेंट है और ACB या AB इसका कॉमन टेंजेंट है एट पॉइंट C। तो फिर क्या होंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे और रीजन में हम लिखेंगे कि रेडियल सेगमेंट CD एंड द कॉमन टेंजेंट ACB लाइन आर परपेंडिकुलर। ये जो सिंबल है CD के बाद मैंने डाला है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब स्मॉलर सर्कल के लिए हम ये बात लिखते हैं। देखिए, सिमिलरली CF इज द रेडियल सेगमेंट एंड ACB इज द कॉमन टेंजेंट। जिस तरह हमने पिछले में CD लिख लिया, तो अब यहां पे क्या लिख रहे हैं कि CF इज द रेडियल सेगमेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड AB is tangent to the smaller circle at point C. So we can write CF is radial segment and ACB is common tangent to the circle with center F. So again by using that statement, so therefore
measurement of ACF angle is equal to 90 डिग्री। तो फिर क्या होगा, ACF एंगल जो है ये भी 90 डिग्री के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज रेडियल सेगमेंट CF and the tangent line ACB is perpendicular to each other. Means ACB line and CF are perpendicular to each other. ये हमने लिख लिया। अब जब हमने ये दो बातें लिख लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए भी और लार्जर सर्कल के लिए भी, दोनों सर्कल के लिए हमने लिख लिया कि रेडियल सेगमेंट और कॉमन टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा इनके दरमियान में जो एंगल ACD और ACF बन रहे हैं वो दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। क्योंकि परपेंडिकुलर, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स 90 एंगल के इक्वल है। अब जब ये 90 डिग्री के इक्वल है तो पहले वाले को हमने इक्वेशन 1 कह दिया, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 कह दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ ACD इज इक्वल टू, measurement of ACD plus measurement of ACF is equal to 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ACD की मेजरमेंट भी 90 डिग्री थी और ACF की भी मेजरमेंट 90 डिग्री थी। दोनों का सम हम लिख रहे हैं, इसलिए मेजरमेंट ऑफ ACD प्लस मेजरमेंट ऑफ ACF इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और इसकी रीजन में हम क्या लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, इस वजह से हम ये बात लिख सकते हैं। अब ACD प्लस ACF, आप जरा इसको फिगर में देखें, ACD प्लस ACF, इसका क्या मतलब है? ये 90 प्लस 90, तो 90 प्लस 90 तो राइट साइड 180 आ जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन लेफ्ट साइड की जगह हम लिख सकते हैं कि DCF इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल DCF इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब DCF का क्या मतलब है? दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। DCF का मतलब क्या है? ये स्ट्रेट एंगल है, और हमने पढ़ा है पहले कि स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो मेजरमेंट ऑफ DCF का मतलब है कि स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। रीजन में हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स, दोनों एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, इस वजह से, यानी आप सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल लिख ले या सिंपल आप लिख ले, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताया था कि क्या मतलब है इसका, कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, and when the sum of two angle is equal to 90 degree then those angles are called complementary angles। तो यहाँ पे 90 प्लस 90 ये दोनों क्या है? ये एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्स है। 90 का सप्लीमेंट 90 है, दोनों का सम 180 आ गया, तो इट मींस कि बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स, इस वजह से ये दोनों क्या है? ये 180 डिग्री के इक्वल है। अब जब 180 डिग्री के इक्वल है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? हेंस DCF is a line segment with point between D and F. Which point is between D and F? The point C is between D and F. Hence DCF is a line segment with point C between D and F। क्या मतलब है कि DF हमारे पास लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है, या DCF हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट D और F है, विद C is between D and F, with C in between D and F। C क्या है? वो between D and F है।
तो अगर आप कोलिनियर पॉइंट्स के डेफिनेशन की तरफ चले जाएं तो क्या मतलब होगा कि DC प्लस CF इज इक्वल टू DF। यहां पे हम कोलिनियर पॉइंट्स के डेफिनेशन यूज कर सकते हैं सिंस हमने लिख लिया कि DCF इज अ लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन, वहां ऊपर हमने स्ट्रेट एंगल मेंशन कर लिया, तो DCF इज अ straight line segment with D and F as endpoints with C in between these two endpoints. So by the definition of collinear points we can write DF is equal to DC plus CF. तो कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि DF जो है वो DC प्लस CF की इक्वल है। और अगर आप अपने टू प्रूव में जाए तो हमने यही चीज लिखी थी कि मेजरमेंट ऑफ DF इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ DC प्लस मेजरमेंट ऑफ CF। और अगर आप अपने फिगर को देखें तो D और F क्या थे, वो सेंटर्स थे लार्जर और स्मॉलर सर्कल के। तो हमने प्रूफ ये करना था कि द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। स्टेटमेंट हमें ये क्यों बनता ना कि इफ टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो यहां पे D और F हमारे पास क्या है, these are the centers of the two circle which are touching each other at point C। D और F हमारे पास सर्कल के, दोनों सर्कल के सेंटर्स है। बड़े सर्कल का सेंटर D है और स्मॉलर सर्कल का सेंटर F है, और दोनों सर्कल C पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो DC जो है वो ग्रेटर सर्कल का रेडियस है और CF जो है वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। सो बाय दैट स्टेटमेंट दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो DF हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर आ गया। DC पहले सेंटर का पहले सर्कल का रेडियस है और CF जो है वो दूसरे सर्कल का रेडियस है। तो लिहाजा DF इज इक्वल टू DC प्लस CF। एंड में आप बेशक जिस तरह हमने टू प्रूव में लिखा है इसी इक्वेशन को हमने आगे एक्सप्लेन किया है, तो आप बेशक यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर D एंड F इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई DC एंड FC। सो हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उन दोनों सर्कल्स के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस वो दोनों के रेडियाई के सम के इक्वल होगा। हेंस प्रूव्ड। हमने यही प्रूव करना था कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस दोनों रेडियाई के सम के इक्वल होगा। तो इस पर्पस के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, दो सर्कल्स लिए, एक स्मॉलर सर्कल एक बड़ा ग्रेटर सर्कल। ग्रेटर सर्कल का सेंटर हमने D मेंशन किया, पहले दूसरे वाले का हमने F मेंशन किया, दोनों के दरमियान सेंटर के डिस्टेंस जो है वो DF शो किया। इन दोनों का हमने कॉमन टेंजेंट ड्रा किया AB, जो कि पॉइंट C से पास हो रहा है, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने पहले लिख लिया, पहले सर्कल के लिए जो बड़ा सर्कल था उसके लिए लिख लिया कि AB इसका कॉमन टेंजेंट है और DC इसका रेडियल सेगमेंट है। लिहाजा बाय द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम ये एक दूसरे के को परपेंडिकुलर होंगे, और जब परपेंडिकुलर है तो ACD जो है वो क्या होगा, वो 90 डिग्री की इक्वल है। सिमिलर स्टेटमेंट हमने दूसरे के लिए लिख लिया कि AB हमारे पास कॉमन टेंजेंट है, CF इसका रेडियल सेगमेंट है, सो बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Therefore ACF will be 90 degree।
ये भी 90 डिग्री के इक्वल है। तो जब ये 90 डिग्री के इक्वल है, फिर हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, उससे हमारे पास 180 डिग्री आ गया। हमने स्ट्रेट एंगल मेंशन किया कि DCF एक स्ट्रेट एंगल है जो कि 180 डिग्री के इक्वल है, जिससे हमने ये प्रूव किया कि DCF हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका D और F एंड पॉइंट्स है विद C in between these two points. So by the definition of collinear points, DF will be equal to DC plus CF. और इससे हमने प्रूव कर लिया कि दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस दोनों रेडियाई के सम की इक्वल है। हेंस प्रूव कर लिया हमने। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये होगा कि हेंस प्रूव्ड। और इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसके लिए कॉपी बनाएं। आपने कॉपी बनाई होगी, चैप्टर 8 चैप्टर 9 दोनों की थ्योरम्स आपने लिखे होंगे। चैप्टर 10 का भी ये हमारा चौथा थ्योरम है, ये भी आपको लिखने चाहिए विद डेट। आपके ऊपर उस पर डेट लिखा हो, कॉपी के ऊपर डेट मेंशन हो, थ्योरम नंबर मेंशन हो, और आपने ये लेफ्ट साइड पे फिगर, राइट साइड पे ये सारी जो है वो रिटर्न वर्क करना है। मतलब वो कॉपी आपके पास जिस तरह साइंस की कॉपी आपकी होती है, एक साइड प्लेन होता है, दूसरे साइड पे लाइन होते हैं, तो लाइनों वाली साइड पे आपने ये रिटर्न वर्क करना है, और जो प्लेन साइड है उस पे आपने फिगर ड्रॉ करनी है। सो लिहाजा हमने ये प्रूव कर लिया। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन या कोई है तो आप थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल पूछ सकते हैं। थैंक यू।